Hi everyone. Welcome to the Major Ragers podcast series with Bharat Sethi. I'm a serial entrepreneur, fitness enthusiast, but most importantly, a curious learner. I started my entrepreneurial journey at the age of 16 and incorporated my first venture, Poster Gully, at age 21. I was very fortunate to have my first exit at the age of 25-26. Uske baad, I started another venture which didn't work out that very well. In 2018, I incorporated the company that has the brand Rage Coffee, which is one of the fastest growing FMCG businesses in the country today. There's a lot of entrepreneurial energy and I feel I can contribute giving back to the ecosystem. How am I able to add value and have significant impact in their lives? I think वही मेरा mission है अभी with Major Ragers podcast. So कोई 40,000 feet वाला ज्ञान नहीं देना चाहता मैं, but सीधी बात with real life fundas. This podcast will be available on YouTube, Instagram, Spotify, Apple Music. अगर आपको सुनना है तो ढूंढ लोगे आप basically. Come to Major Ragers. Young, I did an audit of my dad and my dadu and my great grandfather as well. Audit? Yeah. So I sat with my mom and my dadi and I asked them what all are the mistakes that these guys did. Wow. Yeah. This should go down, as one of the best things I've ever heard. Audit of my family. क्या गलतियां करी हैं? No, because it's so stupid. Look, Steve Jobs का autobiography पढ़ रहे हैं, Bill Gates का पढ़ रहे हैं. Do you really think that works in our families? Like the games have changed. Perfect. भाई. So, but if you study your family members, अपने चाचा ताऊ मामा को ऑब्जर्व करो, क्योंकि वो रूल्स आपके अंदर हेरिडिटरी है. सी मैंने अपने फादर से सिर्फ शक्ल और हाइट नहीं ली है, मैंने बिलीव्स भी लिए हैं. बहुत चीजें ली हैं मैंने. Knowingly और unknowingly. तो उनकी बैड हैबिट्स बचपन की, मेरे दादा की बैड हैबिट्स हो सकता है मेरे अंदर भी वो टेंडेंसीज हो. तो आप जितना जल्दी उसको रोक लो. जैसे मेरे घर में चीनी का बहुत बड़ा इशू था, तो मैंने चीनी कम कर दी है. मेरे घर में कोई जिम नहीं चाहता था, मैंने जिम शुरू कर दिया. आई एम थिन. एवरीबॉडी इन माय फैमिली हैड ओवरवेट इश्यूज. मेरी फैमिली में कोई कंप्यूटर नहीं करता था, कोई नोट्स नहीं बनाता था, कुछ नहीं करता था. तो आई स्पेसिफिकली टुक दोज पॉइंट्स एंड आई रिवर्स देम, क्योंकि बाकी अच्छी चीज़ें तो आ ही जाएगी. वी हैव टू फिल इन दी स्पेसिफिक गैप्स. But you mentioned about a lot to do with business. ये सब I think कहीं ना कहीं work related है. What is the business of podcasting for you? तेरे लेंस से क्या है? इसका बिजनेस क्या है पॉडकास्टिंग का? हाउ डू यू हैव एनी फर्स्ट प्रिंसिपल्स दैट यू यूज टू काइंड ऑफ कैटेगराइज इट, या फिर अभी सिर्फ देख रहे चल सोच रहे कि क्या करना है आगे? सो इसके अंदर ये चीज़ें हैं. फर्स्ट, यू आर जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड एन ऑडियंस. सो अज्यूमिंग ये होता है कि आपके घर वाले आपको पैसे दे रहे होते हैं, आप जॉब कर रहे होते हो. आई एम टॉकिंग अबाउट एज एन 18, 20, 19-year-old, 21-22 जब तक भी है, ठीक है. फर्स्ट, जस्ट बिल्डिंग एन ऑडियंस. Once you have an audience, the first income source comes in for any podcaster, which is आपकी YouTube AdSense. I'm not saying audio because हमने बात करी थी, audio monetization hasn't arrived yet. The second is brand deals, right? A third is because you're good at conversational skills, you make money through anchoring and hosting other things, right? Typically तीन चीज़ें होती हैं. चौथा होता है product services consulting, which is something we all still do, right? मेरी एक वो है ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है प्रो पॉडकास्टर. हम लोग कुछ लोगों के लिए वो काम करते हैं. ये है इसके अंदर बिजनेस. A lot of what you've said comes very naturally to you. कोई एक बंदा अगर करना चाहता है ऐसा, स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट करना चाहता है, कोई एक दो तीन चीजें हैं which you would recommend them? यार देखो, कभी कभी ना ऐसा नहीं होता है कि मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ और मैं सिर्फ दूध से कनेक्ट हूँ. शक्कर भी कनेक्ट होगी, गैस भी कनेक्ट होगा, तपेली भी कनेक्ट होगी, वो फ्रॉथर भी कनेक्ट होगा, सब होगा ना. तो कभी कभी आप स्पेसिफिक लाइफ में ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे को कंपनी बनानी है तो मेरा फाइनेंस सेट हो जाए तो सब सेट हो जाएगा, या मेरा सेल्स सेट है तो मार्केटिंग सेट हो जाएगा, मार्केटिंग सेट है तो ऑपरेशन सेट हो जाएगा. आप समझ रहे हो? ये बॉडी है, बॉडी और माइंड सेट एक ही होता है. कभी ऐसा देखा कि किसी का हाथ 7 फुट का है और सिर 2 फुट छोटा है? एक नाक अपने प्रोपोर्शन में बढ़ती है, पैर अपने प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं, बाल अपने प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं, आंखें अपने प्रोपोर्शन में बढ़ती है. कभी ऐसा था कि आंखें 2 फीट की है किसी की? तो अगेन कमिंग टू दैट एज ऑफ 16, मुझे ऐसा लगता है आपके माँ बाप ने आपको जन्म दे दिया है, उसके बाद आपका जीवन आपका गुरु पलटता है. टीचर, वो टीचर हो सकता है, अच्छा दोस्त हो सकता है, फेसबुक फ्रेंड हो सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है, कोई पॉडकास्ट देने वाला हो सकता है, कोई महात्मा हो सकते हैं, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई क्रिकेटर हो सकता है. आपका आपके घर में सिद्धांत सिर्फ जन्म का है, उसके बाद आप छोड़ दो घर. 1 महीने के लिए छोड़ो, 10 मिनट के लिए छोड़ो, साल भर के लिए छोड़ो, पर वो चीज़
यही इनलाइटमेंट बोलूंगा या खुद की खोज बोलूंगा, स्वयंभू बोलूंगा, या कुछ करना भी हो लाइफ में। आई एम नॉट टेलिंग टू जस्ट कनेक्ट विद स्पिरिचुअलिटी। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट करके अगर कर्मवीर नहीं बने तो वो स्पिरिचुअलिटी भी ठीक नहीं बॉस। Pickpocketers and scammers are the most interesting people to study. Yeah. तो चांदनी चौक में इतने बढ़िया जेब कतरे हैं, like they are absolutely amazing. पालिका बाजार is the best place to learn salesmanship. आप गए हो पालिका बाजार? पहले जाता था बहुत बड़ी। तब वहाँ PS2 की गेम और DVD और फिल्म्स DVDs It's been a while, but हाँ, Yeah. मतलब I know their sales game is They are top notch. amazing. Like you go to a पालिका बाजार, आपको एक आदमी दिखेगा, भाई साहब जरा ये जैकेट पहन के दिखाओ। फिर आप जैकेट पहनोगे, फिर उसने किसी को 20 रुपए दियोगे, एक सामने से आदमी आएगा, आपको घूरेगा, ऐसे करेगा, ठीक है, आपको लगेगा यार ये तो कोई स्ट्रेंजर आके मुझे कह रहा है। फिर आप बोलोगे रेट कितने का है, वो बोलेगा 2000। आप बोलोगे 2000 तो है नहीं मेरे पास। कोई नहीं भाई साहब, ये टी शर्ट देख लो, ये 500 की है। पहले एंकर दिया 2000 का, जब 2000 के सामने आप 500 की टी शर्ट देखते हो तो आप 500 का खरीद भी लेते हो। हाँ हाँ। एंड पालिका सेल्समैन डू दिस इन 5 minutes। तो आप Yeah. सोचो कितना बढ़िया टर्नओवर है Yeah. इन जस्ट 5 minutes। So American Psycho के अंदर the character of Christian Bale, Christian Bale. yeah. Yeah. So he's the default character for all simps and sigma males. कि क्या है कि मतलब उसने मुझसे बात करी लेकिन मैंने आज भी इग्नोर कर दिया, सिग्मा मेल। तो उस पे वो उसके म्यूजिक पे वो उन्होंने उसको कोऑप्ट कर लिया। एंड देयर आर फार वर्स थिंग्स कि 2 हफ्ते पहले आई कांटेक्ट हुआ था, आज तक उसके बारे में सोच रहा हूँ। आप इमेजिन कर सकते हो कि इतनी एलिनेटेड तरीके से आप रोमांस को अप्रोच कर रहे हो और आप मीम्स में उसे रिफ्लेक्ट कर रहे हो एंड लोग आपको लाइक कर रहे हैं बिकॉज वो सब भी ये फील करते हैं। कंटेंट में देयर इज इंफोटेनमेंट एंड फाइनेंस। इन दोनों में अगर आप हो, या बिजनेस केस स्टडीज, इसमें अगर आप हो, देन यूट्यूब इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट मेकिंग मनी, बट नथिंग विल हैपन बिफोर योर 15th और 16th वीडियो। आई विल नॉट गिव टाइम फ्रेम्स, बट 15th या 16th वीडियो से पहले तो आप सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। इस देश में एवरीबडी, एवरी नॉक एंड कॉर्नर ऑन इन इंडिया used to discuss 90% of the time about politics or maybe cricket. Third now added is business and startup. पिछले 10 सालों में, 7-8 सालों में हाउ टू बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है हमारे देश में। हाउ टू बिकम बिलियनर, इंटरनेट पे बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे, गूगल पे। हाउ टू बी अ बिजनेस मैन, हाउ टू स्टार्ट अ कंपनी, हाउ टू कॉम्पीट विद रेज, हाउ टू what is 5 good bad thing about MBA Chawala, what is 5 good thing about so सबको सब पता चल गया है। So now startup and business are mainstream discussions, but they are not mainstream diligence or doer or कर्मवीर। तीसरी चीज, 1-2 साल, 3 साल तक, 6 महीने तक, 8 महीने तक सबने ट्राई किया। 10 साल के प्लेयर कितने हैं? 5 साल के प्लेयर कितने हैं? 15 साल के प्लेयर कितने हैं लॉन्ग टर्म वाले? पॉलिटिक्स हर देश का आदमी डिस्कस करता है, पर हर आदमी राजनीति करता नहीं है। क्रिकेट डिस्कस सब करते हैं, विराट को ऐसा खेलना था, शुभम गिल ने जो शॉट नहीं मारना था। Today, impressions, views, clicks leads to obviously brand building. Is there a bigger agenda? Because मेरे को ऐसा लगता है audio, video, they're all just mediums. Ultimately, it's a unique position that Vinamra will hold or holds today, which will help him create wealth no matter what he does. No matter what the medium is, rather. Right. He will still do what he does very well, which is what you're doing with Dostcast. But I want to understand, अगर मान ले आज YouTube नहीं है, आज ऑडियो नहीं है कोई, आज Spotify नहीं है तेरे पास, how will Vinamra build his brand if you don't have these distribution channels? I would still use words and images and visuals to communicate ideas that I am obsessed with. चाहे वो उसका मीडियम कोई और इंसान हो, उसके माध्यम से हम लोग, आई थिंक अ पॉडकास्ट कॉन्वर्सेशन इज लॉट लाइक एन एसे। एक ऐसे की डेफिनेशन होती है, इट्स एन अटेम्प्ट टू आर्ग्यू, इट्स नॉट अ डेफिनेट थिंग, इट्स एन अटेम्प्ट। जब हम लोग 2 लोग बात करते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस का वेन डायग्राम मिलता है। अगर हम दोनों अच्छी तरह बात करेंगे, वी बोथ मीट एट द सेम प्लेस, हमारे वेन डायग्राम के बीच में जो कॉमन पॉइंट है ना, कंसेंट्रिक, वो इतना होना चाहिए कि उनको लगे कि यार हाँ ये चीज़ रिलेटेबल है, हम दोनों के बीच में रिलेटेबल है, ऑडियंस को भी लगे, मुझे भी लगे, आपको भी लगे, राइट? इफ दैट हैज बीन अचीव्ड, देन इट डजंट मैटर अगर आप वो पैनल पे करते हो कॉन्वर्सेशन, अगर आप वो कंपनी के इंटरनली एक फायर साइड चैट में कर लेते हो वो चीज़, अगर आप किसी विलेज के नुक्कड़ पे कर लेते हो वो चीज़, अल्टीमेटली दैट्स द आइडिया ऑफ कॉन्वर्सेशन. If I were to not even do podcasting, I would still use words and images to affect people's moods and their ideas about the world. हम लोग ना अगर गोल इसमें और इसमें फंस जाते हैं ना, तो हम हमारे आप को लिमिट कर रहे हैं बस।
बी फ्लेक्सिबल लाइक वाटर। और हमारे मालवी में कहावत है, 20 बुद्धि 30 धन। 20 की उम्र है ना, चल रही ना 20 या 20s अगर आपके चल रहे ना, 29 ईयर्स ऑफ एज, 364 डेज, एंड देन यू जम्प इनटू 30, तब तक बुद्धि पे बहुत काम करो। अपने आप को इंटेलेक्चुअली, इमोशनली एज एन स्ट्रॉन्ग करो। पता होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए, चीज़ें जानकारी होनी चाहिए, पर्सपेक्टिव होना चाहिए, लाइफ पता होना चाहिए, सुख दुख समस्या, दरिद्रता, परिवार का दुख, बीमारी का दुख, पैसों का दुख, समझ रहे हो? सुंदरता का सुख, सुंदरता का दुख, बहुत सुंदर होने के भी बहुत दुख है, बहुत सुंदर होने के बहुत सुख है, बहुत पैसे वालों के भी बहुत अपने अपने दुख है, बहुत वो समझो, उनसे पूछो। फिर 30 के बाद धन के पीछे जाओ कि इतना करोड़ कमाना है, इतना लाख कमाना है। तो अभी मैं 30 क्रॉस करूँगा, उसके बाद गोल डिसाइड करूँगा। अभी तो मैं पर्सपेक्टिव लाइफ के गैदर कर रहा हूँ यार। पर्सपेक्टिव मेरे को कुछ बचे हैं अभी और करने हैं अभी। आपको बताया था ना, मैं मैजिक बहुत स्टडी करता हूँ। द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट मैजिक इज, अगर आप मैजिक की हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो जब वॉर शुरू हो रही थी ना, तो ये सारे साइंटिस्ट और इन सब पे ना काम नहीं था, साइकोलॉजिस्ट के पास काम नहीं था, साइंटिस्ट पे काम नहीं था। उस टाइम पे ना लोगों को डिस्ट्रैक्शंस चाहिए थी, तो मैजिक शोज बहुत हिट हो गए थे। तो साइकोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट, केमिस्ट, सब लोगों ने अपना काम धंधा छोड़ के मैजिक करना शुरू कर दिया। अच्छा। Yes, that is why magic is the only field where all of these subjects overlap, क्योंकि इन सबके brains का contribution था। Where there's supply chain, operations, and marketing, brand, distribution. It's doing that. मतलब मैं 1 घंटा निकाल रहा हूँ हफ्ते का to do major ages. 1 hour यार it's taken me a year to do that. To take out 1 hour to be genuine at doing what I'm doing, to be able to do it very genuinely, Right. without any agenda. We are doing this. तो मुझसे पूछ भी रहा था क्या गोल क्या है? कुछ गोल नहीं है, सिर्फ बातें करनी है, खुद के लिए कर रहा हूँ ये मैं। And at some point I think enough people will enjoy it, like it, watch it, and then maybe we'll have a bigger platform to talk to other kinds of people. Right. So it's coming from a place of honesty, ठीक है? बट लेकिन 1 घंटा निकालना यार, मैं सोचता हूँ यार कि अगर कोई क्रिएटर है उसको 1 घंटा अपने कंटेंट के धंधे से निकाल के इस पे देना, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल टू बिल्ड इट. आई कैन बिल्ड दिस बिकॉज आई एम जस्ट यूटिलाइजिंग माई इंटरनल टीम टू डू इट, एंड वी डोंट हैव वी डोंट हैव एन एजेंडा विद इट. आपका हर एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब हमारी पूरी टीम को मोटिवेट करता है टू कीप क्रिएटिंग दिस कंटेंट. प्लीज सपोर्ट करो, शेयर करो, जितने लोगों तक ये पहुंचाओगे उतना हम सबको मोटिवेशन मिलेगा टू कीप डूइंग दिस. थैंक यू. कम टू मेजर एजेस.